Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Government Lohia College Churu. I am Dr. Sunita Meena, Assistant Professor English. Today we are going to discuss an essay, The Gift of the Magi by O. Henry. This essay is included in your BA second year's second paper, Prose and Fiction. William Sidney Porter was born in 1862 and died in 1910. He was known by his pen name O. Henry. He was an American writer. O. Henry's short stories are known for their wit, wordplay, warm characterization, and surprise endings. William Sidney Porter was born at Greensboro, North Carolina. He then moved to Austin, Texas, where he worked in a bank. There, the charges of embezzlement were leveled against him and he was imprisoned. While in prison, he began writing short stories, and it is there that he assumed the pen name O. Henry for his writings. After his release from prison in 1901, he moved to New York, which is the setting for many of his stories. O. Henry is famous for his use of surprise and twist endings. He is regarded as the grandmaster of modern short stories. He wrote more than 300 stories which are collected in the volumes Cabbages and King, The 4 Million, and The Voice of the City. Brief summary of The Gift of the Magi. The Gift of the Magi is short story written and published in 1905. It is Christmas time and Della is the protagonist of the story. Della wants to buy a gift for her husband Jim. However, she has only $1.87. Della sees herself in the mirror and on a sudden inspiration rushes out again to sell her hair to a wig shop. She gets $20, just enough to buy platinum fob chain she had seen in a shop window. Jim returns home, sees Della and finds himself in an indiscernible position. He embraces Della and assures her that he still loves her and gives her the gift he has brought for her. Tearing the gift eagerly, Della finds a set of combs that she has so often admired in a Broadway shop. Hiding her tears, Della hands over her gift, the platinum fob chain, to Jim. Jim looks at her with infinite love and patience and suggests that they should put away their presents for a while, as he has sold his gold watch to buy combs for her. The story ends with Jim and Della's mutually sacrificial gifts of love are compared with those of the biblical Magi. Story setting. The place of the story is New York City, where Dillingham couple means Della Dillingham and Jim Dillingham, lived in a shabby second story flat. Time, it is Christmas evening. Weather, cold as it was winter. Social condition, couple financially struggling. They are not financially strong, they are struggling. Mood or atmosphere, life is made of sobs, sniffles,
and smiles with sniffles predominating. लाइफ जो है वो दुखों से भरी हुई है, दुख ज़्यादा हैं और सुख कम है। स्निफल्स का मतलब होता है छींकना, लेकिन यहाँ पे लिटरेरी मीनिंग नहीं है इसका। इसका मीनिंग है सोरोज, दुख। कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी। डेला डिलिंगम। डेला डिलिंगम जो है अ लविंग डिवोटेड वुमन टू हर हस्बैंड, यंग, अफेक्शनेट एंड सेल्फलेस एज डिस्क्राइब्ड। डेला डिलिंगम जो सेंट्रल कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है स्टोरी की, वो एक बहुत ही डिवोटेड वुमन है अपने हस्बैंड के प्रति और सेल्फलेस है, उसका लव बिल्कुल सेल्फलेस है। जिम डिलिंगम, डेलाज हस्बैंड। डेला का हस्बैंड है जिम डिलिंगम। कंटेंटेड, सेटिस्फाइड है, साइलेंट, वेल बिहेव्ड, वेल नेचर्ड है, गुड नेचर्ड है, 22 ईयर्स ओल्ड है, हार्ड वर्किंग मैन है, स्ट्रगलिंग टू पे हाउस रेंट एंड हु लव्स हर वाइफ सेल्फलेसली। अपनी वाइफ को सेल्फलेसली, अपने आप से भी ज़्यादा प्यार करता है। थर्ड कैरेक्टर है मैडम सॉफ्रोनी। मैडम सॉफ्रोनी हेयर शॉप ओनर है, जहाँ पे डेला अपने जो हेयर्स है वो सेल करती है। नाउ कम टू द स्टोरी एनालिसिस। ऑन क्रिसमस ईव डेला ओनली हैड $1.87 in hand with which to buy a gift for her husband Jim. डेला के पास में ओनली $1.87 होते हैं जिससे वो अपने हस्बैंड के लिए गिफ्ट खरीदना चाहती है क्रिसमस पे। शी काउंटेड मनी थ्राइस, वो 3 बार पैसों को गिनती है, बट इट वॉज स्टिल $1.87, लेकिन अभी भी वो $1.87 हैं। 3 बार उनकी गिनती करती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छा सा गिफ्ट अपने हस्बैंड को देना चाहती है क्रिसमस पे। सो वॉट शी डिड, शी सॉब्ड, फ्लॉप्ड डाउन ऑन देयर शेबी काउच। काउच मीन्स गद्दा। अपने गद्दे पे वो बिल्कुल सॉब्ड, सिसकियाँ लेते हुए एकदम दुखी होकर के गिर जाती है। अवेलेबल इनसाइड देयर फ्लैट, जो कि उनके फ्लैट के अंदर है काउच, उसके ऊपर वो गिरती है एकदम सिसकियाँ लेते हुए दुखी होकर के। टाइम्स आर टफ, उनका समय बहुत ही बुरा चलता है। जिम वॉज ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली एंड वॉज बीइंग पेड $30 पर वीक बट नाउ श्रंक टू $20 पर वीक। उसे केवल $30 पर वीक मिलते हैं, लेकिन अब उसकी जो इनकम है वो बिल्कुल घटा दी गई, $20 पर वीक कर दिए गए। इट वॉज बेयरली इनफ टू पे फॉर देयर स्मॉल फ्लैट। इतने से पैसे से वो मुश्किल से ही अपने फ्लैट का रेंट पे कर पाता था। एज दे वर फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग, डेला स्पेंट अ लॉट of time planning for the best present for her husband. डेला अपना ज़्यादातर समय बिताती है कि वो क्या बेस्ट प्रेजेंट दे अपने हस्बैंड को खुश करने के लिए क्रिसमस ईव के ऊपर। समथिंग फाइन एंड रेयर एंड स्टर्लिंग, कुछ ऐसा जो कि बहुत ही रेयर हो, बहुत ही फाइन हो। स्टर्लिंग, स्टर्लिंग मतलब वर्थ गिविंग हो, कुछ ऐसा जो मूल्यवान हो कुछ। समथिंग जस्ट अ लिटिल बिट नियर टू बीइंग वर्दी ऑफ द ऑनर ऑफ बीइंग ओन्ड बाय जिम, ऐसा कुछ जिसे पाकर के जिम को बहुत ही अपने आप पे प्राउड महसूस हो। सडनली डेला गॉट एन आइडिया, अचानक डेला के दिमाग में एक आइडिया आता है। वर्लिंग अबाउट द रूम, रूम के चारों तरफ चक्कर काटते समय शी लेट हर हेयर फॉल डाउन टू इट्स फुल लेंथ, अपने बालों को जो कि बहुत ही लंबे बाल थे उसके, उनको वो खोल देती है। शी शेड अ फ्यू टीयर्स दैट फेल ऑन worn out red carpet and faltered for a few moments after she tied up her hair. वो अपने थोड़े से आंसू उसके worn out रेड कारपेट जो बिछा हुआ उसके ऊपर गिरते हैं, क्योंकि उसके दिमाग में जो आइडिया आया है वो बहुत ही दुखी कर देने वाला आइडिया आया है।
उसके बाद में वो अपने हेयर्स को बांधती है, टाइड अप करती है। It is one of two prized possessions between her and Jim, the other being the gold watch handed down to him from his father. Two possessions हैं उनके पास में, एक तो डेला के बाल, दूसरी जो गोल्ड चेन है, गोल्ड वॉच है सॉरी, जो कि जिम को अपने फादर से मिली थी। A moment later, Della goes down the street to Madame Sofroni's shop where the sign reads, Hair goods of all kinds. दूसरे ही क्षण डेला जो है मैडम सॉफ्रोनी की शॉप पे पहुंचती है। वहाँ पे लिखा हुआ होता है आगे शॉप के ऊपर, हेयर गुड्स ऑफ ऑल काइंड्स। सभी प्रकार के जो हेयर गुड्स हैं वो यहाँ पे उनका लेन देन किया जाता है। देयर डेला सोल्ड हर हेयर, वहाँ पे जाकर मैडम सॉफ्रोनी को वो अपने बाल बेच दिए उसने। मैडम सॉफ्रोनी बॉट हर हेयर फॉर $20। मैडम सॉफ्रोनी उसके बाल $20 में खरीद लेती है। आफ्टर 2 hours ऑफ शॉपिंग, 2 घंटे की शॉपिंग के बाद में, शी फाउंड what she deemed the right gift। 2 घंटे बाजार में घूमने के बाद में डेला को गिफ्ट जो है, जो राइट गिफ्ट है, जो गिफ्ट वो चाहती थी अपने हस्बैंड को देना, वो उसे वहाँ पे मिलता है। अ प्लैटिनम फोब चेन टू रिप्लेस द ओल्ड लेदर स्ट्रैप अटैच्ड टू जिम्स वॉच। एक प्लैटिनम मेटल जो होता है उसकी बनी हुई जो फोब चेन है वो उसे मिलती है बाजार के अंदर, जो इट इज सिंपल एंड एलिगेंट एंड इट कॉस्टेड डेला $21, लिविंग हर विथ 87 cents। ये बहुत ही सिंपल सा एलिगेंट सा गिफ्ट है जो कि $21 में डेला खरीदती है। वंस डेला हैड रिटर्न होम, she used curling irons to give herself a new hairdo। डेला घर आती है, उसे अपना लुक देखती है, बहुत दुखी होती है और कोशिश करती है कि जिम से किस प्रकार से वो बचे। तो वो अपने आयरन लेती है, कर्लिंग आयरन, और अपने बालों को एक नया लुक देती है। रेडिएट द कॉफ़ी बनाती है। गॉट द pork chops रेडी फॉर फ्राइंग, देन प्रेज दैट जिम विल लाइक हर न्यू लुक। और फिर प्रे करती है कि जिम उसके जो नया लुक है उसको पसंद करे। जिम अराइव्ड एट 7 PM। जिम 7 बजे घर पहुंचता है। When he walked in, जब वो अंदर आता है, he stared at her। घूर के, स्टेयर मतलब घूर के देखना, घूर के डेला को देखता है। His eyes were fixed upon डेला, उसकी आईज एकदम फिक्स्ड हो जाती डेला के ऊपर। There was something in the way he looked at her that worried डेला। डेला बहुत ही दुखी थी, मतलब चिंतित थी। किस तरीके से जो जिम है उसे देख रहा था, वो कुछ भी सोच नहीं पा रही थी कि क्या होगा आगे। Worried that he is displeased with her appearance। वो worried थी कि उसके appearance को देख करके जो जिम है बहुत ही दुखी हो गया होगा। डेला explained to him that she sold her hair। डेला उसे एक्सप्लेन करने का प्रयास करती है और कहती है कि उसने अपने बाल बेच दिए। बिकॉज आई कुड नॉट हैव लिव्ड थ्रू क्रिसमस विदाउट गिविंग यू अ प्रेजेंट। क्योंकि मैं क्रिसमस पे ऐसे नहीं रह सकती थी तुम्हें गिफ्ट दिए बिना। जिम सीम्ड bewildered। जिम बहुत ही एस्टोनिश्ड हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। अ मोमेंट लेटर आफ्टर ही स्नैप्ड आउट ऑफ हिज ट्रांस। ट्रांस मतलब अपने अनकॉन्शियस हो जाता है बिल्कुल, और थोड़ी देर में उस अपनी अनकॉन्शियसनेस से वो निकलता है। और उसके बाद में ही एम्ब्रेस्ड डेला इन हिज आर्म्स। डेला को अपने एम्ब्रेस में ले लेता है। देन पुल्ड आउट अ पैकेज फ्रॉम हिज कोट। फिर उसके बाद में अपने कोट से एक पैकेट निकालता है। एंड थ्रू देम ऑन टू टॉप ऑफ द टेबल, और टेबल के ऊपर उसे डाल देता है। टेलिंग डेला
to not make any more mistakes such as what she had recently done just for Jim, for he would still love her the same. और कहता है डेला से कि और ज़्यादा मिस्टेक नहीं करे as what she had recently done just for Jim, जो कि उसने अभी अभी की, क्योंकि जिम उससे उतना ही प्यार करता है और करता रहेगा, उसे गिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऐसी मिस्टेक वो आगे नहीं करे. However, he explained that Della would understand the reason why he reacted strangely upon seeing her earlier after she unwraps her gift. डेला को हालांकि समझाता है कि उसने ऐसे रिएक्ट क्यों किया डेला के साथ में जब वो अपना गिफ्ट अनरैप कर रही थी. आफ्टर ओपनिंग द प्रेजेंट शी क्राइड आउट विद जॉय. डेला अपना प्रेजेंट जो कि उसे जिम ने दिया उसे खोलती है. खोलने के साथ ही वो जोर से खुशी से चिल्लाती है. देन बस्टेड इनटू टीयर्स. लेकिन तुरंत बाद में वो रोने लग जाती है. इट वॉज अ सेट ऑफ एक्सपेंसिव फैंसी कॉम्स शी हैड लॉन्ग बीन वॉन्टिंग. ये जो गिफ्ट था वो बहुत ही एक्सपेंसिव और फैंसी कॉम्स थे जो कि वो लंबे समय से जिसकी चाहत उसे थी. डेला गेव हिम हिज प्रेजेंट. डेला उसे अपना प्रेजेंट देती है जिम को. होल्डिंग आउट द डल प्रीशियस मेटल ईगरली. जिम टम्बल्ड डाउन द काउच विद अ स्माइल. जिम नीचे लेट जाता है एंड आस्क डेला टू कीप देयर प्रेजेंट्स फॉर अ वाइल, explaining that he had sold his watch to buy Della her fancy combs. वो डेला को कहता है कि एक बार के लिए गिफ्ट्स रख दो, क्योंकि उसने अपनी जो गोल्ड वॉच है उसको सेल कर दिया डेला के लिए फैंसी कॉम्स लाने के लिए. हियर जो डेला और जिम हैं दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी प्रीशियस पोजीशंस जो थी. जिम का प्रीशियस पोजीशन क्या था? उसकी जो गोल्ड वॉच है. और डेला का प्रीशियस पोजीशन उसके जो लंबे बाल हैं. तो दोनों ने ही अपने जो मूल्यवान चीज़ें थी उनको सेक्रीफाइस कर दिया एक दूसरे के लिए. तो थीम क्या है इस स्टोरी की? सेक्रीफाइस. थ्रू आउट द होल स्टोरी sacrifice played a big role in couple's life as Della sold her hair and Jim sold his precious watch. Second theme is love. One would need as great love as Della has for Jim to be able to sacrifice such a precious thing. Although the sacrifices made were all in vain, though as the gifts cannot be used, the two does not think so. ये गिफ्ट्स उनके लिए अब कोई मायने नहीं रखते थे. हालांकि क्यों? क्योंकि डेला ने अपने बाल कटवा दिए तो कॉम्स का उसके लिए कोई यूज़ नहीं था. जिम ने अपनी वॉच ही बेच दी तो उसके लिए चेन का कोई मतलब नहीं था. प्लेटिनम चेन यूजलेस थी उसके लिए. लेकिन वो दोनों ऐसा नहीं सोचते थे. दे नो नाउ दैट दे वुड बोथ सेक्रीफाइस देयर मोस्ट प्राइज्ड पोजीशंस फॉर ईच अदर. उन्होंने बहुत ही जो अपनी कीमती पोजीशंस थी वो एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस कर दी. इन द एंड व्हाट दे गेव टू ईच अदर वाज लव. अंत में दोनों एक दूसरे को क्या देते हैं? अपना प्यार देते हैं, अपना लव देते हैं. थैंक यू.